Hello, dear children. Good morning. Today we are going to read this poem. The name of the poem is A Legend of the Northland. If we look at the meaning of this word legend, this refers to an old traditional story which generally has no written record, but it is transferred from one generation to another generation by mothers to their sons, and then accordingly one generation refers this particular स्टोरी टू अनदर जनरेशन, यानी माँ अपने बच्चों को सुनाती है, फिर बच्चे अपने बच्चों को सुनाते हैं। इस तरह से लेजेंड एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर होती है। ये नॉर्थलैंड रेफर्स टू द नॉर्थ ऑफ अमेरिका। अमेरिका के नॉर्थ को रेफर करता है बिकॉज द पोएटस हु इज गोइंग टू टेल द स्टोरी और हु हैज कंपोज दिस पोएम that also is an American poetess. तो देखिए American poetess, what is her name? Her name is Phoebe Cary. You can see Phoebe Cary. The name of this American poetess is. She was the sister of a very well-known American poetess. The name of the poetess was Alice Cary. वो Alice Cary की sister है, उनका नाम है Phoebe Cary. So let's begin with the first stanza. Away in the Northlands. First, read about the introduction to the poem. This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter, जिसने Saint Peter को नाराज कर दिया. Why? Because of her greed. अपने लालच के कारण. तो कैसे नाराज किया, फिर उसका क्या रिजल्ट हुआ, that we have to see in this poem. Away in the Northland where the hours of the day are few. जहाँ दिन के घंटे बहुत कम होते हैं, दिन बहुत छोटा होता है. Nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Through means complete. Means away in the Northland. Northland में जहाँ दिन बहुत छोटे होते हैं और रातें बहुत लंबी होती हैं, इतनी लंबी होती हैं कि people cannot sleep through all the night. कि लोग पूरी रात नहीं सो सकते. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. और जहाँ पर ये अपने हार्नेस करने का मतलब होता है बांधना. The swift reindeer, swift means swift कहते हैं बहुत फास्ट, और reindeer is a kind of animal. reindeer एक प्रकार का एनिमल होता है. तो देखिए reindeer की मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ. दिस इज reindeer. ये रेंडियर है जिसे वो अपनी स्लेज में बांधते हैं. स्लेज क्या होती है? स्लेज एक गाड़ी होती है उसके अंदर, जो पर्टिकुलरली बर्फीले इलाकों में पाई जाती है. उसके साथ में उसे बांध कर रखते हैं व्हेन इट स्नोज, जब ये बर्फ गिरती है. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, और बच्चे बिल्कुल बियर्स कब्स, बियर के बच्चों की तरह दिखाई देते हैं. इन देयर फनी फरी क्लोथ्स. अब इसमें ये यहाँ पर यूज किया गया है सिमिली, SIMILE, सिमिली यूज किया गया है. क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चों को बियर के कब्स के से कंपैरिजन किया गया है, और वो भी लाइक वर्ड का यूज करके. दैट्स व्हाई सिमिली इज यूज्ड हियर. एंड इफ यू लुक एट द लास्ट लाइन, फनी फरी, this is called alliteration, and the spelling of alliteration is ALLITERATION. ये F साउंड रिपीट हो रही है, इसीलिए इसको alliteration कहते हैं. They tell them a curious story. I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. They refers to the people who live at Northland. Them refers to children. A curious story means very interesting story. But the poetess says that I don't believe it is true, means I do not believe that the story is true. Yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Means I'm going to tell you the story because I want you to learn a lesson from that. ये टेल इसका मतलब है स्टोरी, और ये टेल का मतलब कहना या बताना. So now the story is going to begin. तो ये जो स्टोरी किसी पोएम में सुनाई जाती है, जब स्टोरी को किसी पोएम के थ्रू सुनाया जाता है तो उसे हम कहते हैं इंग्लिश में बैलड. BALLAD, ये बैलड की स्पेलिंग होती है. तो ये पूरी की पूरी जो पोएम है ये एक बैलड भी है. So what happened once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did,
एक बार क्या हुआ, जब गुड सेंट पीटर, जिन्हें कि अ, जो जो क्राइस्ट हैं उनका एपस्टल भी माना जाता है। क्राइस्ट का एपस्टल मानने का मतलब भगवान की एक जो क्राइस्ट हैं उनकी एक सजीव मूर्ति माना जाता है, क्राइस्ट का एक अवतार माना जाता है। जब वो दुनिया में नीचे रहते थे एंड वॉकड अबाउट इट, एंड ही वॉकड अबाउट इट, ही मीन्स ही वॉकड अराउंड द वर्ल्ड प्रीचिंग, प्रीचिंग का मतलब अपना उपदेश देते हुए जब घूमते थे, जस्ट एज ही डिड, यू नो। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. hearth कहते हैं चूल्हे को। चूल्हा यानी जिसके ऊपर या जिसके अंदर लकड़ियां जलाकर या किसी अन्य तरह का फ्यूल जलाकर आग जलाई जाती है खाना पकाने के लिए, उसे हर्थ कहते हैं। तो he refers to Saint Peter. Where did he come? He come to the door of a cottage. And who was there in the cottage? A little woman was there. What was the woman doing? She was making cakes and baking. Bake means पकाना, इसी बेक से बेकरी बनता है। और where was she baking the cakes? On the hearth. And being faint with fasting. Fasting कहते हैं भूख, भूख के मारे वो बेहोश होने वाले थे। Because the day was almost done. Because day पूरी तरह से खत्म होने वाला था। He asked her from her store of cakes to give him a single one. ये he refers to Saint Peter, her refers to that woman. What did Saint Peter ask the old lady, ask the woman? He asked the woman to give a single piece of cake from her store of cakes. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. So what did the woman do? She made a very little cake. उसने बहुत छोटा सा केक बनाया। But as it baking lay, लेकिन जब ये पक रहा था, बेकिंग के अंदर यानी पकने के लिए पड़ा हुआ था, she looked at it again. She looked at it again means she looked again at the cake and thought, what thought came into her mind? उसको लगा कि ये तो बड़ा है, too large, बहुत बड़ा है इसको देने के लिए, यानी सेंट पीटर को देने के लिए उसे बहुत बड़ा दिखाई दिया। Therefore, she needed another. नीड का मतलब होता है गूंथना, जैसे आटा गूंथने के लिए नीड वर्ड का यूज किया जाता है, इसलिए उसने दूसरा आटा गूंथा। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, एंड शी मेड अनदर केक बट दिस वाज स्मॉलर देन द प्रीवियस, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, बट व्हेन शी गेव अगेन अ लुक एट इट, लेकिन जब उसने दोबारा उसकी तरफ देखा तो भी उसे तब भी वो बहुत बड़ा दिखाई दिया, उसे लगा ये केक बहुत बड़ा है, इतना बड़ा केक इसको नहीं देना चाहिए। देन शी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डाउ, डाउ कहते हैं आटे को, जो गूंथा हुआ आटा होता है। टाइनी स्क्रैप मीन्स छोटा सा स्क्रैप दिया, छोटा सा हिस्सा दिया। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसे खूब रोल किया, बिल्कुल एक वेफर की तरह। बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, बिल्कुल एक वेफर की तरह। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, मीन्स शी कुड नॉट पार्ट विद दैट का मतलब बट शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, लेकिन फिर भी वो उसके साथ में सेटिस्फाइड नहीं थी, उसे अभी भी लग रहा था कि ये जो केक है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। फॉर शी सेड, फिर उसने कहा, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ एंड येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। उसने क्या कहा कि सेंट पीटर, आई एम ट्राइंग टू गिव यू द केक्स बट व्हेन आई माई सेल्फ ईट द केक्स it looks very small to me, but when I give you, try to give you, it looks very larger. यानी जब मैं खुद के लिए पकाती हूँ तो मुझे मेरे केक बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन जब मैं तुम्हें देती हूँ तो मुझे बहुत बड़े लगते हैं। तो ये कोई जादू नहीं है, दिस इज़ नॉट ए मैजिक, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। यानी जब हम अपने आप के लिए करते हैं, कुछ करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन जब दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. Provoke का मतलब होता है to anger, गुस्सा दिलाना, किसी को भड़काना, उसको कहते हैं provoke. तो good Saint Peter grew angry. Why did he become angry? Because he was hungry and faint. क्योंकि वो हंग्री भी थे। ये यहाँ पर भी एलिट्रेशन है, देखो एच साउंड और ये भी एच साउंड, और ये श्योरली सच
SS sound. He was hungry and faint, इसलिए he became angry, and he thought that this woman was provoking him. Then he said, "You are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm." तो सेंट पीटर ने क्या कहा कि तुम बहुत सेल्फिश हो, टू ड्वेल का मतलब होता है लिव, इस ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए तुम्हें खाना, शेल्टर और ये फायर नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि तुम बहुत सेल्फिश हो. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू. नाउ सेंट पीटर इज गोइंग टू गिव ए कर्स. सेंट पीटर अब एक श्राप दे रहे हैं उस वुमन को. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, ये यू रेफर्स टू द वुमन, एंड शैल गेट यू स्कैंटी फूड. स्कैंटी फूड मीन्स वेरी लिटिल. व्हाट वाज द कर्स? कि तुम भी अब पक्षियों की तरह ही रहोगी, तुम्हें ह्यूमन फॉर्म में रहने का कोई अधिकार नहीं है, बिकॉज यू आर सो सेल्फिश. स्कैंटी फूड तुम्हें मिलेगा बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग. वो भी कैसे? बोरिंग एंड बोरिंग करके. यानी बोरिंग एंड बोरिंग करने का मतलब होता है बार बार, जैसे एक बर्ड होता है बार बार लकड़ी के ऊपर जब वो अपनी चोंच को टकराता है, उसको कहते हैं बोरिंग. तो यहाँ पर आप ऐसा भी समझ सकते हैं, बाय सर्चिंग एंड सर्चिंग एंड सर्चिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड. तो व्हाट वाज द कर्स? दैट the curse was that the woman will not live in human form, she will live in the form of birds, and she will get very little food, and that also after so much of hard work. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. उसके बाद में वो चिमनी के ऊपर चली गई, कुछ भी नहीं बोला उसने, और फिर उसके बाद में वो एक वुडपेकर के रूप में चेंज हो. तो वुडपेकर कैसा दिखता है? एक बार मैं आपको वुडपेकर की इमेज दिखा देता हूँ. वुडपेकर, ये देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ वुडपेकर. यू कैन सी बोरिंग एंड बोरिंग इन दैट वे. ये जो बीक है इसको बार बार टच किया जाता है, तब उसके बाद में उनको खाना मिलता है. एंड सो जस्ट गो बैक टू द पोएम. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. She had a scarlet cap on her head. Scarlet आप कलर का नाम है, आप जानते ही हैं इसको. और अगर हम देखें पिक्चर के अंदर, हो सकता है हमें स्कारलेट दिखाई भी दे. स्कारलेट कलर की ये जो कलर है, इसको स्कारलेट कलर बोला गया है, ये वाला कलर. लेट्स गो बैक टू द पोएम. And that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. ये फिर आपका सिमिलिया. और उसके जितने भी बचे हुए कपड़े थे वो सभी कपड़े बिल्कुल जलकर कोयले की तरह हो गए. ये कोयले की तरह ही हैं उसके. आप देखेंगे तो ये पूरा ब्लैक है और ये पूरा का पूरा ब्लैक हो गया है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वन. And every country schoolboy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. So हर गांव के स्कूल के बच्चे को भी वो वुड में दिख जाती है बोरिंग और बोरिंग करती हुई. दैट इज बिकॉज ऑफ द कर्स ऑफ सेंट पीटर. ऐसी स्टोरी है कि सेंट पीटर के कर्स के कारण उसके साथ में ऐसा हुआ है. सो बैलेड इज ए सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंडा. जैसे मैंने आपको बताया है कि बैलेड जो होती है वो एक सॉन्ग होता है जिसमें एक स्टोरी को नरेट किया जाता है. पोएम में स्टोरी को नरेट किया जाता है छोटे छोटे स्टेंजास में. बैलेड्स आर अ पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर एंड आर पास्ड ऑन ऑरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. ऑरली का मतलब मुंह से. मुंह का मतलब होता है सुना सुनाकर, यानी मुंह से सुनाकर उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर किया जाता है. तो ये भी एक बैलेड है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोएम. लेकिन एक बार इसकी राइम स्कीम भी देख लेते हैं. राइम स्कीम कैसे बनती है? राइम स्कीम बनाना बहुत सिंपल है. जैसे मुझे इस स्टेंजा की राइम स्कीम बनानी है तो मैं क्या करूँगा, इस स्टेंजा की जितनी लाइन्स हैं सभी में लास्ट वर्ड की तरफ जाऊँगा. ये सब लास्ट वर्ड को मैंने अंडरलाइन कर लिया. स्कूल बॉय, ये साउंड पहली साउंड है जो मैं टच में आया हूँ, इस स्टेंजा की पहली साउंड है, इसलिए मैंने इसको नाम दिया ए. उसके बाद में इस सेकेंड लाइन की लास्ट वर्ड है वुड, ये भी डिफरेंट साउंड है तो मैंने इसको दिया नाम बी. फिर मैंने थर्ड लाइन को देखा डे. अब ये स्कूल बॉय डे, ये थोड़ी सी राइम हो रहा है, राइमिंग वर्ड्स हैं, इसलिए मैंने इसको वापस से ए नाम दे दिया. वुड, फूड, ये राइम हो रहा है वुड के साथ में, तो ये इसकी राइम स्कीम क्या बन गई?
ए बी ए बी। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कभी कभी कि राइम स्कीम क्या है इस स्टेंजा की। तो राइम स्कीम ऐसे बनाई जाती है। जस्ट गो टू द लास्ट वर्ड्स ऑफ एवरी लाइन, हर लाइन के लास्ट वर्ड्स की तरफ जाना है और उनको नाम देने हैं साउंड्स को। जो पहली साउंड होगी वो ए होगी, जो बी होगी दूसरी साउंड होगी वो बी होगी। और अगर कोई इसमें से रिपीट होती है तो उसको उसके साथ में फॉलो करें। जैसे स्कूल बॉय डे के साथ में राइम हो रहा है ए, वुड फूड के साथ में राइम हो रहा है तो बी। So this was all about from the poem. If you have any doubt, please drop a comment in the comment box. Thank you.